Good morning, students. In continuation to the last topic, that is genetics, in that we have studied the definition of the genetics. We have studied some terms which are going to be in the coming videos when we will study this genetics when we'll proceed further. Now, what do we mainly study about the genetics? Genetics is simply the branch of biology. It is mainly the branch of science that deals with the study of inheritance of the characters. Now, there are some basic features of inheritance. There are some basic features of inheritance. What are those? Let us try to discuss them one by. Let us try to discuss them rather. In the middle of the 18th century, a well-known biologist या well-known taxonomist आप बात कर लोगे, his name was Corliss Linnaeus. He was a Swedish biologist, he was a Swedish taxonomist, and along with two German plant breeders, एक का नाम था J.G. Kohlreuter, and there was another one, his name was Carl F. von Gärtner. They performed these Carl Linnaeus, J.G. Kohlreuter, and Carl F. von Gärtner. They performed what we call as the artificial cross pollinations in plants, and they obtained some hybrid offsprings. This Kohlreuter obtained experimental evidences that the inherited characters tended to remain discrete, that they do not express themselves. Although अगर हम बात कर लेंगे जो उसने उस वक्त ऑब्जर्व किया, दे वर वेरी मच सिमिलर दैट ऑफ द मेंडल, लेकिन बट he was not able to interrupt them correctly. मेंडल की अगर हम बात कर लेंगे, he first presented his laws of inheritance in the year 1865, but those laws they remain what we call as unknown for many years. Then उनकी जो डिस्कवरी हो गई इन द ईयर 1900 बाय वेल नोन बायोलॉजिस्ट दिस जेनेटिस्ट डी वैरीज और एक कोरेंस, एक और था शेचमार्क. सो मेंडल ने ही फर्स्ट प्रेजेंटेड हिज rules of inheritance in the year 1865, but they remain unknown for many years. What were those reasons? Because of some reasons, then they were rediscovered in the year 1900 by D. Varies, Corens, and Schimark, and they rediscovered them in 3 different countries, and their rediscovery, it marks the beginning of the modern genetics. What was studied in the middle of the 18th century, a Swedish biologist, a Swedish taxonomist, Carl Linnaeus, along with two German biologists, J.G. Kohlreuter and Carl F. von Gärtner, what did they do? They performed artificial cross-pollination in plants, and they obtained hybrid offsprings.
Carl Colwriter obtained experimental evidence that inherited trait जो है the inherited character जो है they tended to be discrete. His observations were similar to Mendel, but he was not in a position to interrupt them correctly. मेंडल की अगर हम बात कर लेंगे, he first presented his rules of inheritance in the year 1865, but they remain unknown for many years. Then in the year 1900, three scientists these Mendel's law, and they were rediscovered in the year 1900 by De Vries, Correns, and Schumacher independently in three different countries, and that marked the beginning of the modern genetics. Now, there were few features, essential, important features of inheritance. Features of inheritance. What were those? First one, every character, every trait, it has got two alternate forms. It has got two forms जिनको हम एलील्स बोलते हैं. जो एलील हमने लास्ट जो वीडियो में जो टर्म हमने बताई थी, जीन के बाद हमने टर्म बताई थी एलील, एंड दैट दीज टू डिफरेंट फॉर्म्स दे वर कॉल्ड एज द एलील्स. अब वन एलील जो हम कहेंगे वन फॉर्म रादर, it express rather more often more than the other. That means कि एक फॉर्म वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेता है और जो दूसरा वाला जो है वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर. दैट मीन्स हिडन. द फॉर्म दैट इज एक्सप्रेस्ड, जिसको आज हम बोलते हैं दैट इट इज़ द डोमिनेंट फॉर्म, और जो वो छुपा रहता है दैट इज कॉल्ड एज द रिसेसिव. तीसरी बात, एनी ऑल्टरनेट फॉर्म जो है, any alternate form of a trait may remain unexpressed for many generations. कि जो हिडन वाला होता है, विच डज नॉट एक्सप्रेस itself, वो इट रिमेन्स दैट वो फॉर्म इट रिमेन्स अनएक्सप्रेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता फॉर मनी जनरेशंस. देन दिस हिडन फॉर्म जो है, हिडन फॉर्म या हिडन कैरेक्टर या हिडन फॉर्म, और वी कैन से हिडन कैरेक्टर may reappear in original form, या अपने आप को फिर reappear कर लेता है. फिफ्थ वन, traits, characters. अगर हम बात कर लेंगे characters oblique traits of any organism are expressed, वो एक्सप्रेस होते हैं due to discrete particulate entities which do not
get modified or blended. Now, what are the various features of inheritance? हर एक कैरेक्टर के लिए इसके दो फॉर्म्स होते हैं. ये फर्स्ट वाला. सेकंड वन फॉर्म जो है एक वाला, it may express more than the other. Which expresses more, that is called as the dominant, and which expresses less, that is called recessive. अब जो ये होता है कि जो वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, दैट रिमेन हिडन फॉर मनी जनरेशन. चौथी बात, जो हिडन वाला कैरेक्टर होता है, हम जो या फॉर्म जो होता है, इट मे रीअपियर in original form in after 2 generation, after 1 generation, after 4th generation, लेकिन ये reappear हो जाता है. अब जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म के होते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड ड्यू टू डिस्क्रीट particulate entities. There are some particulate entities which do not get blended, जिनको वो they do not get blended और they do not get, वो चेंज भी नहीं हो जाते और वो मिक्स अप नहीं हो जाते हैं. They do not get blended, वो entities, वो particulates, they do not get, which express the genes, which express these characters, which express these traits, they do not get mix up or they do not get change. Now, अब जो हमारे पास जो टॉपिक आता है, दैट इज अबाउट द मेंडल, हु ही वाज, व्हाट डिड ही डिड. हम उसके मुतालिक थोड़ा बहुत आज जानने की कोशिश कर लेंगे. मेंडल की अगर हम बात कर लेंगे, हिज नेम वाज मेंडल या जॉर्जर जी मेंडल. He was born in the year 1822. He belongs to a very poor family. एक गरीब खानदान का वो था. एक गांव का नाम था, that is called as सिलिसियन, जो आजकल चेकोस्लोवाकिया का एक गांव है. उसने अपनी तालीम, जो हाई स्कूल तालीम, ही कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 18 years. उसने अपनी जो अर्ली तालीम जो थी, जो पहले उसने जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर, जो उसने अर्ली एजुकेशन हासिल कर ली, उसने एक मॉनेस्ट्री से वो हासिल की इन ब्रूनो, जो ऑस्ट्रिया का एक जगह है. एट द वेरी अर्ली एज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड and he was very much what we called as he was ordinated a priest, what we called as उस चर्च का नाम था सेंट थॉमस. हाँ, फिर उसको इसके बाद कुछ वेना भेजा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना. वहाँ पर उसको कुछ तालीम हासिल करनी थी, फॉर ट्रेनिंग इन फिजिक्स, फॉर ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स, फॉर ट्रेनिंग इन नेचुरल साइंस. जब वो वेना चला जाता है, व्हेन ही वाज एट वेना, मेंडल जो था, ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 साइंटिस्ट्स एट दैट टाइम. एक का नाम था एंगर, एफ एंगर, फ्रांज एंगर. एंगर जो था, ही वॉज ए प्लांट फिजियोलॉजिस्ट. और दूसरा था सी डॉपलर या क्रिश्चियन डॉपलर. क्रिश्चियन डॉपलर जो था, आपने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, डॉपलर इफेक्ट. लेकिन ही वॉज वेरी मच व्हाट वी कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. लेकिन ना हम कहेंगे इस मेंडल ने प्लांट फिजियोलॉजिस्ट पढ़ी, ना इसने हम कहेंगे व्हाट वी कॉल एज द फिजिक्स पढ़ी. ही पिकड अप द नॉलेज, जो हमने पहले ही बताया था कि इन द मिडल ऑफ द 18th century जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था, कॉलराइटर, उसका काम उसने आगे बढ़ाना शुरू कर लिए. व्हाट डिड ही डू, कि जो उसने वो आर्टिफिशियल हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की थी. फिर उसने जो व्हाट वी फाउंड दे ऑब्टेन द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स. उसने वही ही पिकड अप दैट नॉलेज. जब वो वेना की यूनिवर्सिटी से वापस चला आ गया, एंड ही वेंट टू द ब्रेनो इन द ईयर 1854. जब वो वापस चला गया,
वहाँ पर उस ब्रूनो के सेंट थॉमस चर्च में उसने फिर वो प्रीस्ट का काम कंटिन्यू कर लिया. As well as besides the teacher he was appointed as a priest के अलावा he was appointed as a teacher in high school. फिर 1857 में उसने वो अपना फेमस काम जो उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लिए, क्योंकि उस मॉनेस्ट्री में जहाँ वो प्रीस्ट हुआ करता था वहाँ पर एक किचन गार्डन हम कहेंगे कि वहाँ पर जो पी प्लांट्स थे वो उसने ग्रो कर लिए. एंड ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स on that pea plant, and he carried his experiments from 1856 to 1863 for 7 years. कहते हैं कि what Mendel did with the garden pea, what Mendel did with these pea plants, it was not an accident, but it was the result of his careful thoughts and calculations. क्या हमें कहेंगे कि मेंडल गया और गार्डन में चला गया, वहाँ पर उसने पी के पेड़ देखे, पी प्लांट्स देखे और उसने उन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लिया. इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, बट जो उसने उन पर काम करना शुरू किया पी प्लांट्स पर, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज केयरफुल थॉट्स, इट वॉज द केयरफुल ऑफ हिज व्हाट वी कॉल एज द कैलकुलेशन. जब मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर लिया, ही what did he do, what did he conclude from his experiments, he उसने उन एक्सपेरिमेंट को अपने एक पेपर में छपा लिया. ही प्रेजेंट देम इन अ पेपर एंड दैट वाज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. मेंडल ने जो भी काम किया इन 7 सालों में, 7-8 सालों में, कि उसने वो पूरा एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैड फाउंड उसने उसको पब्लिश कर लिया, प्रेजेंट किया इन पेपर, एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसने जो पेपर जो छपाया अपना, दैट वाज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. और फिर इसको उस काम को, and which was read before Brown natural that paper it was studied before Brown Natural History Society in 1865, and it was published in, किसमें इसको पब्लिश किया गया, एनुअल प्रोसीडिंग्स of Natural History Society in 1865. Whatever the paper, whatever the experiments जो उसने पेपर में लिखा, and his paper was known as Experiments in Plant Hybridization, that paper was read in the Brown Natural History Society in 1865. Then that paper हम कहेंगे it was published in annual proceedings of Natural History Society in 1866. लेकिन जो भी मेंडल ने काम किया, it did not attract the, हम कहेंगे वो slightest attention. ये कहा जाता है कि मेंडल जो था, ही यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑल हिज पेपर्स. उस वक्त एक और साइंटिस्ट था, ग्रेट बॉटनिस्ट रादर था, उसका नाम था नेगलाई, NAGLI, NAGLI. इट वॉज अ वेल नोन बॉटनिस्ट एट दैट टाइम, टू हुम जो हम कहेंगे कि व्हाट वी कॉल मेंडल यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑल हिज पेपर्स. मेंडल जो था, he failed rather to appreciate the importance of his work. मेंडल जो था, जो नेल गए था, उसने मेंडल को अप्रिसिएशन भी नहीं किया कि मेंडल ने क्या काम किया रखा. अब मेंडल जो था, इसका जो काम था, इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड. ही बिकम वेरी मच डिसअपॉइंटेड. और आखिरकार मेंडल की जो वफ़ात हो गई, वो वफ़ात हो गई 1884, क्योंकि कुछ उसमें किडनी की डिसऑर्डर हो गई. लेकिन
जो मेंडल था he became very much disappointed up to that time. लेकिन इसके बाद मेंडल का जो काम था, हम कहेंगे कि इन द ईयर 1900 थ्री साइंटिस्ट दैट वाज व्हाट वी कॉल द डिवेरीज था, कॉरेंस था या वॉन शिशमार जो था, जिसने उसका काम फिर स्टार्ट कर लिया, फिर उसको डिस्कवर किया. What did Mendel do actually in his work? How he say that the characters are inherited from the parents, the offspring? उसको हम जानने की कोशिश कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट. और उसमें हम ये भी पढ़ लेंगे व्हाई डिड मेंडल चूज दिस पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैंने कहा इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, बट मेंडल ने इस पर ज़्यादा तवज्जो, इट वाज ऑफ हिज थॉट्स, इट वाज ऑफ हिज कैलकुलेशन दैट मेंडल चूज this pea plant for his observation, for his experiment. Then what were those conditions, कि वो कौन सी conditions थी जिस पर मेंडल ज़्यादा तवज्जो इस pea plant पर देने लगा for calculating his, for studying his experiments. That will be study in the next topic, or rather tomorrow. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.